Hello, everybody. How are you all? I hope you all are very fine and you are loving this language, learning this language. You are very happy with it. You're enjoying it. This is a 50 second video. Just imagine. आप इतना आगे मेरे साथ आ गए हो. You have learned so much and I'm sure you must be enjoying this success of yours. We have done so many topics, active voice, passive voice, the more important one. And today we are starting with another very important area, and that is conjunction. Just like prepositions, it is again a long chapter. So it will take some time. We will go by and by, dhire dhire chalenge, and you will understand very beautifully because now it is all very comfortable because you have already learned so much. Now, whenever I speak in English, I think you are able to understand. Now, the thing is, the more I speak in English, the more good it is for you. Because then only you will feel like talking like me. आपका मन करेगा कि मैं भी मैम की तरह बोलूं. So try to read more and more books in English. Try to give more and more time to newspaper reading, magazine reading. Try to give more and more time to yourself, talking to yourself when you are alone or when you are with your best friend. As I told you, you should have an agreement with your friend that you two will talk only in English, because then you will have a lot of practice and this practice can make you perfect. So let us start with the topic conjunctions so that you improve your knowledge level by some more extent. कुछ और हद तक आपका ज्ञान बढ़ाते हैं आज. चलिए कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं. मेरी बुक है आपके पास, उसको खोल कर रखिए और देखिए सबसे पहले आ रहा है कंडीशनल कंजंक्शंस. कंजंक्शंस आपको पहले से ही पता है, जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है. एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज होता है जिसको किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में ही एक मीनिंग रखता है. इट हैज इट्स ओन मीनिंग. बट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं बन पाता बिना मेन क्लॉज के. So to join these two clauses, like the main clause and the subordinate clause, we need certain words according to the meaning of the situation. So that word that joins two clauses together is termed as conjunction. जैसे आज मैंने आपको इंग्लिश में सिखाया, तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास मेरा, ठीक है. तो आपने मुझे जरूर बताना है कि क्या आपका इतना लेवल हो गया है कि आप मुझे 51 लेक्चर सीखने के बाद जब मैंने आपको सीधा इंग्लिश में सिखाया तो क्या आप सीख पाए, क्या आप समझ पा रहे थे, क्या आपको समझ आ रहा था मैं कौन सा टेंस, कौन सा ग्रामर का रूल लगा रही हूँ. सो डू टेल मी, व्हाट्सएप के जरिए जुड़िए और बताते रहिए अपनी परफॉर्मेंस. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए. मेरा हर स्टूडेंट irrespective of the educational background, irrespective of the age, every student is a student at the end, and hence he is or she is very important for me. आपकी success मेरी success, because this is my passion, you know. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, बस इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ. और ज़माना गुजर गया आप तो पढ़ाते पढ़ाते. इवन जब स्कूल में थी, छोटी थी, तब भी हर किसी के बेंच पे जाके बोलती थी कुछ पूछना है बता दूं. So I have been of that type since my childhood. So you can understand my craze. Like I love to teach basically.
So that is the reason I am teaching English to you. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इट इज कंडीशनल कंजंक्शंस. जो दो क्लॉजेस को जोड़े वो कंडीशनल कंजंक्शंस. मैक्सिमम आपको आते हैं. इफ कितनी बार यूज किया हमने. व्हेन, प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड होता है बशर्ते. बशर्ते मतलब इस शर्त पर, इस कंडीशन पर. सपोज, सपोज मतलब मान लो. लिखते जाओ मीनिंग अगर आपको नहीं आता तो. सपोज मीन्स मान लो. इन केस अगर. इफ, इन केस एक ही बात है. बाय द टाइम, बाय भी आपने सीखा तक, तो जिस समय तक. कंजंक्शन में ज से हिंदी ज्यादा निकलती है, पता है आपको. फिर अनटिल, ये भी सीखा है आपने मेरे से जब प्रीपोजिशन सीखा था. जब तक. अनलेस, इट्स नॉट जब तक, जब तक नहीं. टिल होता है जब तक, और अनटिल और अनलेस होता है जब तक नहीं. दोनों सीखे हैं आपने मेरे से, और टिल तो सीखा ही सीखा है. तो ये प्रीपोजिशंस में भी हम सीख चुके हैं, है ना. बाय भी सीखा था, अनटिल अनलेस टिल भी सीखा था. तो काफी कुछ आपको ऑलरेडी आता है. तो थोड़ा सा नॉलेज पे इम्प्रूवमेंट आपका होगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा कि वाओ इट इज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ऑलरेडी आपको नॉलेज था. ओके. जो इतने लेक्चर्स आपने मेरे साथ किए, वो सबसे बहुत अच्छा ज्ञान है आपका. अब इसमें खास बात क्या है. एक होता है मेन क्लॉज, मैंने बताया. फिर मेन क्लॉज के बाद आ जाता है कंजंक्शन. फिर आ जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट हो गया जूनियर क्लॉज, है ना. इसलिए इसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन से ही चलेगा, और इसका मीनिंग तभी आएगा जब साथ में मेन क्लॉज बोला जाएगा. और दूसरी खास बात कि ये जो कंडीशनल कंजंक्शंस हैं, इन सब में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आप गौर करेंगे. नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट नॉर्मली यू विल सी दे आर हैविंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मिलेगा. बाकी ये सारी चीजें कंजंक्शंस जो हैं प्रैक्टिस से ज्यादा आएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द सेंटेंसेस गिवन इन माय बुक. उन्हीं से स्टार्ट करते हैं. गौर करिए. बोलते हैं इफ ही सेज सो आई विल अग्री विद यू. देखो, इफ ही सेज सो, एक एक वर्ड आपको आता है. जो नहीं आता होगा वो मैं बताती जाऊंगी. आई विल अग्री विद यू. अभी भी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे मॉडल्स बचे हैं, काउंटेबल्स बचे हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस बचे हैं. सो दीज 3 एरियाज आर स्टिल लेफ्ट. रेस्ट ऑफ द ग्रामर, the total grammar, English grammar, we have already done. So it is very comfortable for you now. Okay. So he says, I will agree with you. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है. आप भी गलती पकड़ गए होंगे. मैम बोले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा वो क्या लिख रहे हैं. तो आई विल अग्री विद यू आपको आते हैं. बस आपको सो का मतलब मैंने बताया था. आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है. ये टॉपिक अभी आना है काउंटेबल्स में. इफ ही, हाँ कंजंक्शंस में भी आ जाएगा सो. तो इफ ही से सो, तो ये सो का मतलब है ऐसा. अगर वो ऐसा कहता है तो मैं उसकी बात मान लूंगा. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आता. अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. इसमें अगर वाला पोर्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है. इफ ही सेज सो, इसको हम हिंदी ऐसे भी बोल सकते हैं. अगर वो ऐसा कहेगा तो मैं उसकी बात मान लूंगा, मैं उससे अग्री कर लूंगा, मैं उससे सहमत हो जाऊंगा. अगर वो ऐसा कहेगा. इट्स नॉट कि हमें हिंदी में सेज दिख रहा है तो मैं कहता है ही बोलूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी करूं. नॉट नेसेसरी, क्योंकि 2 बार विल तो आना नहीं है, लेकिन सेंस तो वही है ना. तो हिंदी का क्या है, आपकी मेरी जैसे मर्जी बोले. तो अगर वो ऐसा कहेगा तो मैं उससे अग्री कर लूंगा. अगर वो ऐसा कहता है तो मैं एग्री कर लूंगा. जोन सी स्टोरी बन रही हो, जैसे बोलना हो बोल देना. परेशानी की क्या बात है. आई होप यू आर गेटिंग. अच्छा, फिर आई गिव हिम एडवाइस ओनली व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट. आई गिव हिम एडवाइस ओनली व्हेन. अब आ गया ना ओनली व्हेन. व्हेन कंजंक्शन है. ही आस्क्ड फॉर इट, तो मैं उसे सलाह देता हूं. एडवाइस मतलब सलाह. अब देखो, एडवाइस सी ई से सलाह नाउन है, और एडवाइस एस से वर्ब है.
मैंने उसको सलाह दी, आई एडवाइज्ड हिम। तो अगर मुझे वर्ब बनाना है तो एस लगाना पड़ेगा, और अगर मुझे नाउन बनाना है तो सी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे वर्ड्स में ऐसा हो जाएगा। तो आई गिव हिम एडवाइस, मैं उसको सलाह देता हूं। ओनली, ऑल्सो, एवर, जस्ट, मैंने आपको सिखाया ये सारे वर्ड्स जहां हिंदी में वही इंग्लिश में। ओनली व्हेन, सिर्फ तब ही, जब, ऐसे। अब हिंदी का क्या है, सिर्फ तब ही, जब, या सिर्फ जब, आपको जैसे बोलना है बोलो, जैसा आपको फ्लो है वैसे बोलो। आप इंडिया के किस कोने में रहते हो उस तरह की हिंदी बोलते होगे, हु केयर्स, हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। द वे यू स्पीक, वेलकम, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन इंग्लिश तो ऐसे ही बोलेंगे। अब आस्क फॉर एक फ्रेज है, आस्क फॉर मतलब मांगना। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मेरे से एक ग्लास पानी का मांगा। तो आस्क फॉर इट्स अ फ्रेज, ओके। फ्रेज भी मैंने आपको सिखाया है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप जिसका अपना एक मीनिंग बनता है। तो आई गिव हिम एडवाइस ओनली व्हेन ही आस्क फॉर इट, मैं उसको सलाह देता हूं सिर्फ तब जब वो मेरे से मांगता है। जब सलाह मांगता है बस तभी देता हूं। अब हिंदी में भी दोनों में प्रेजेंट था, इंग्लिश में भी प्रेजेंट है, बस इस ये जो जब है उसके लिए मैंने लगा दिया, और आपने पहले भी सुना हुआ है ना, कुछ नया नहीं है आपके लिए। इट्स वेरी कूल नाउ। ओके, लेट अस हैव द नेक्स्ट। He will come provided I call him in a dignified manner. आता है आपको, he will come, वो आएगा। Provided, provided मतलब इस शर्त पर, बशर्ते, इस शर्त पर, है ना। Provided I call him in a dignified manner, मैं उसको बुलाऊं in a dignified manner, एक सभ्य तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से, एक सीरियस मैनर में, है ना, in a dignified manner। आप डिग्निफाइड के लिए जो भी बोलना चाहो, बहुत बार ये वर्ड आप ऑलरेडी कई लेक्चर्स में देख चुके हो, और पता है आपको दिस इज एन एडजेक्टिव। डिग्निफाइड, मैनर कैसा है, डिग्निफाइड, तो इट इज अ थर्ड फॉर्म, देयरफॉर इट इज पास्ट पार्टिसिपल, राइट। एंड ही विल कम प्रोवाइडेड आई कॉल हिम इन अ डिग्निफाइड मैनर, तो वो आएगा अगर मैं उसे। तो आप गौर करोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद प्रेजेंट टेंस दिख रहा है आपको, राइट, क्योंकि पहले वो होता है फिर मेन क्लॉज वाला काम होता है। तो अगर मैं उसे बुलाऊंगा तभी वो आएगा, ऐसे भी बोल सकते थे। अगर मैं उसे बुलाता हूँ, बशर्ते मैं उसको बुलाता हूँ तभी वो आएगा, ऐसे। तो हिंदी आपकी है, आप जैसे भी बोलना चाहें, नो प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, सपोज ही आस्क अबाउट यू, व्हाट विल आई टेल हिम। सपोज ही आस्क अबाउट यू, मान लो ही आस्क अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में पूछता है ना। एक एक वर्ड आता है आपको आज की डेट पे। सपोज ही आस्क अबाउट यू, तो व्हाट विल आई टेल हिम, मैं उसको क्या बताऊंगा। तो व्हाट विल आई टेल हिम ये इंटरोगेटिव ले गया, क्योंकि यही क्वेश्चन है। और सपोज ही आस्क अबाउट यू ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने शुरू में लगाया इसलिए कॉमा लगाना पड़ा। व्हाट विल आई टेल हिम, सपोज ही आस्क अबाउट यू, ये थोड़ा सा तरीका ठीक नहीं है बोलने का, इसलिए आप गौर करेंगे कभी मेन क्लॉज पहले लगाया जाता है और कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लगाया जाता है। Conjunction is used always before the subordinate clause. This is true, and this you know. So suppose he ask about you. सब मान लो वो तुम्हारे बारे में पूछता है, तो मैं उसे क्या बताऊंगा, ये इसका मीनिंग है। ओके, फाइन। फिर उसके बाद आता है इन केस ही फेल्स। इन केस मतलब अगर, इफ, है ना। इन केस ही फेल्स, he will have to leave his studies. He will have to, ये भी सीख लिया आपने, he will have to करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लीव, छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा, अपनी स्टडीज। तो इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। तो इन केस ही फेल्स, अगर वो फेल हो जाता है तो उसे अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ेंगी। तो ही विल हैव टू लीव हिज स्टडीज इन केस ही फेल्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इन केस इज अ कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट। देखो जब भी आपको लगे ना कि ठीक है आ गया लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया, आप रिवाइज करो, आप रिवाइंड करो। वीडियो का तो सबसे बड़ा फायदा ही यही है, कितनी बार भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिवाइंड, पॉज, कितनी फैसिलिटीज है आपके पास, इतना बड़ा ब्यूटीफुल जरिया है। आई रियली लव दिस वीडियो लेक्चर्स, यू नो,
बिकॉज इसमें आप कभी भी अपने घर बैठे किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, तो इस चीज का फायदा उठाओ और वंडरफुल परफॉर्मेंस लेकर आओ। ओके, फिर बाय द टाइम आई रीच होम, जब तक, है ना, जब तक मैं घर पहुंचता हूं या जब तक मैं घर पहुंचूंगा, वो तो स्टोरी को देख के समझ आएगा। सो बाय द टाइम आई रीच होम शी गेट्स रेडी विद द डिनर, ये मेन क्लॉज है, वो खाने के साथ तैयार हो जाती हैं। तो शी गेट्स, तो ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो फिर सबॉर्डिनेट तो प्रेजेंट में ही बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है ये रोज की बात है, जब तक मैं घर पहुंचता हूँ वो खाने के साथ तैयार हो जाती हैं। तो शी गेट्स रेडी विद द फूड, इसका मतलब मैं जब घर पहुंचता हूँ ना, मुझे खाना तैयार मिलता है, ये है इसका मतलब। तो बाय द टाइम आई रीच होम शी गेट्स रेडी विद द फूड, विद द डिनर, जो भी बोलना है बोलो, दैट इज योर चॉइस। ओके, नाउ लेट अस हैव द नेक्स्ट। He does not do anything until I ask him to, ये आप पहले भी सीख चुके हो, प्रीपोजिशंस में सीखा था। He does not do anything until I ask him to, अब ये डू लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, दैट इज योर चॉइस, ये बात भी सीख चुके हो। He does not do anything, वो कुछ नहीं करता, until I ask him to, तो ask मतलब करने को कहना, ये भी आप सीख चुके हो कि ask के बाद जब भी to आता है इंफिनिटिव, तो वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया था मैंने, याद है आपको। तो he does not do anything until I ask him to, इसका मतलब है वो कुछ नहीं करता जब तक मैं उसे नहीं कहता, तो अन की वजह से नहीं आ जाता है। और टिल का मतलब होता है जब तक, अगर वो कंजंक्शन बन रहा है, नहीं तो प्रीपोजिशन में इसका मतलब होता है तक, टिल इवनिंग, शाम तक। और अनटिल में सिंगल एल हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो अगर जो मैंने आपको बताया वो नोट करके अपने ब्रेन में सेट करके नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, भाई साहब कितनी भी बुलंदियां छू लोगे, घायल हो जाओगे अंदर तक कि वाह ये मैं हूं, इतना वंडरफुल परफॉर्मेंस आ गई मेरी, बल्ले बल्ले होगी भाई साहब। तो ही डज नॉट डू एनीथिंग अंटिल आई आस्क हिम टू, वो कुछ भी नहीं करता है जब तक मैं उसे नहीं कहता हूँ। दिस इज द मीनिंग। ओके, लेट अस हैव द नेक्स्ट सेंटेंस। अब जैसे मैंने बोला लेट अस हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी आपको पता है, अपन ने अभी अभी हाल ही में सीखा लेट अस। चलो अगला सेंटेंस करते हैं, तो चलो के लिए लेट अस। ओके, सो लेट अस हैव द नेक्स्ट सेंटेंस। I will not go there unless he asks me to. I will not go there, अब सेंटेंस में दो बार will नहीं आएगा। I will not एक बार तो आ गया और मेन क्लॉज में आ गया, तो आगे तो सबऑर्डिनेट में तो फिर प्रेजेंट ही आएगा। तो I will not go there unless, unless का मतलब भी वही है, जब तक नहीं, कंडीशन है, एस कंडीशन पर ही जाऊंगा। तो अंटिल में समय की इंपॉर्टेंस है, अनलेस में तो हालात की इंपॉर्टेंस है भाई साहब। तो आई विल नॉट गो देयर अनलेस ही आस्क मी टू। तो जब तक वो मुझे नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊंगा वहां, आई विल नॉट गो देयर। तो यहाँ पे ही डज नॉट डू एनीथिंग अंटिल, यहाँ पे समय है कि अगर मैंने उसे 6 बजे बोला तो वो 6 बजे तक नहीं करेगा, 6 बजे बोला तो 6 बजे ही वो काम होगा। और ये जो है अनलेस ही आस्क मी टू, तो ये तो हो गया कि मान लो उसने मुझे नहीं कहा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा ऐसे, तो ये कंडीशन है। ओके, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे नहीं कहेगा, मेरा उससे झगड़ा हो गया और अब उसे मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी, फिर वो मुझे कहेगा तो मैं जाऊंगा। तो ये तो भले जिंदगी गुजर जाए, तो इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस ही नहीं। तो जब टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है और शर्त की इंपॉर्टेंस है, तब अंटिल ना लगा के अनलेस आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंफ्यूजन है, आप बोल रहे हैं किसी से जल्दी जल्दी में, आपको नहीं पता चल रहा अंटिल या अनलेस, तो आप अनलेस और अंटिल दोनों का यूज कर जाओ। अंटिल एंड अनलेस ऐसे बोलो, आई विल नॉट गो देयर अंटिल एंड अनलेस ही आस्क मी टू। वंडरफुल है जी, वंडरफुल, चिंता ही मत करो आप। टू गुड, अंटिल एंड अनलेस आप देखना लोगों को, इसलिए जितना ज्यादा सुनोगे इंग्लिश में बोलते हुए लोगों को, उतना आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप लोगों की गलतियां ढूंढोगे। People do not speak fine English. People commit a lot of mistakes.
and they never know that they are committing mistakes. उन्हें मालूम तक नहीं चलता कि वो गलतियां कर रहे हैं. तो गलतियां करना, commit. Okay, fine. Next is wait here. Here, here नहीं पढ़ते, here. तो wait here till he comes back. तो जब तक वो वापस आता है तुम यही वेट करो, जाना मत. तभी जाना जब वो वापस आए. इसको आप until से भी बना सकते थे. Wait here until he comes back. जब तक वो ना आए. तो वो आपकी चॉइस है, आपको till से मीनिंग निकालना है, until से निकालना है, जो बेटर लगे. हिंदी में जैसे बोलते हो वैसे इंग्लिश में बोल दो. सिंपल एनफ. ओके, I cannot go till he is with me. मैं नहीं जा सकता. अभी मॉडल आपने सीखना है, लेकिन सीख लीजिए. कैन का मतलब होता है कर सकना. तो I cannot go, मैं नहीं जा सकता. till he is with me. तो till मतलब जब तक. he is with me, जब तक वो है मेरे साथ. with me. prepositions भी सीख चुके हो. he is, this is to be form, ये भी सीख चुके हो. he is कैसे हो गया. मॉडल अभी सीखना है आपने. कैन कैसे आ गया. लेकिन इतना मैंने सिखाया आपको कहीं ना कहीं कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है. हर मॉडल का अपना एक हिंदी होता है. तो आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता जब तक वो है मेरे साथ. तो जब तक वो मेरे साथ है मैं नहीं जा सकता. आप समझिए इस बात को, मुझे फोर्स ना करा करिए. तो आई कैन नॉट गो टिल ही इज विद मी. ये थे हमारे कंडीशनल कंजंक्शंस. धीरे धीरे चलेंगे इसमें, बहुत लंबा चैप्टर है. तो वी विल मूव बाय एंड बाय. बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे. ओके, तो प्लीज बी परफेक्ट with conditional conjunctions. Work hard, make your own sentences, talk to your family members using these conjunctions, talk to yourself, do everything in English, think of the sentences I have taught you. अब तो बहुत ज्यादा vocabulary सीख चुके हो आप. बहुत ज्यादा तरह का ग्रामर का बहुत ज्यादा 90% से ऊपर ग्रामर सीख चुके हो. तो अब तो बहुत ज्यादा तरीके से बातचीत कर सकते हो अपने आप से. बहुत तरह की बातचीत कर सकते हो. तो कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ. जब आप खाना खा रहे हो तो अपने आप से बात करो. आई एम ईटिंग 2 चपाती टुडे. आई विल नॉट ईट 3 चपातीज बिकॉज आई टुक समथिंग इन मार्केट विद माई फ्रेंड. कुछ भी. तो ईट इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश. स्लीप इन इंग्लिश, हाउ कम मैम. अब मैं सोने जा रहा हूँ ना, आप सोने जा रहे हो ना. आई एम गोइंग टू स्लीप. इट इज 10 o'clock at night. I think I will take 15 minutes more to sleep. कुछ भी बोलते रहो. Early in the morning I will do this. कुछ भी. The bed is properly laid. कुछ भी बोलते रहो. अपने आप से मन में बोलो. अगर लग रहा है ऊंचा नहीं बोल सकता तो मन में बोलो. ऊंचा बोल सकते हो, wonderful. तो do every work in English. तब आप मानेंगे, हम मानेंगे कि आप पैशनेट हो, आपको जुनून है इंग्लिश सीखने का. और ऐसे व्यक्ति को, पर्सन को, ऐसे बच्चे को या किसी भी एज के पर्सन को सिखाना नहीं पड़ता. वो तो खुद ही सीख जाता है. मैं 5 मिनट सिखाऊंगी, वो उसकी 50 मिनट प्रैक्टिस कर लेगा. आप सोचिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा. अगर आप पैशनेट हैं तो जो 51 वीडियोस आप देख चुके हैं, आप पता नहीं उसे बिल्कुल अच्छे तक अपने माइंड में सेट कर चुके होंगे. कितनी बार देखा होगा, या कितनी बार, एक बार देखने के बाद बुक से कितनी बार रिवाइज किया होगा. वोकैबुलरी का एक एक वर्ड, ग्रामर का एक एक रूल आपके बिल्कुल दिमाग में टिप्स पे होगा. उंगलियों पे टिप्स होती है ना, उस पे होगा. जो पूछो अभी बताता हूँ. ये परफॉर्मेंस होगी आपकी अगर आप पैशनेट हो तो. अगर आप नहीं हो तो हो जाओ, ताकि मुझे भी लगे वाओ, सी माय स्टूडेंट कितना अच्छा बोलता है आज की डेट पे, कितना अच्छा लिखता है. So please work hard. Good luck to all of you. Bye bye. Let us meet in the next lecture. Okay, see you.